Yes, so we have Lagrange's theorem and its consequences. So what is Lagrange's theorem? If G is a finite group, then order of subgroup divides the order of group, right? So this is what Lagrange's theorem. And then we have also discussed some consequences of Lagrange's theorem, that if my G is a finite group, and you consider any A belongs to G, then order of A also divides order of G. You consider any A in G, then A to the power order of G, it will gives you the identity is equal to identity. And third thing, this is what consequences of Lagrange's theorem. And the third one is any group of prime order is cyclic. तो हमने ये देखा था Lagrange's theorem, और उसके बाद इसकी ये थी कॉरोलरी और कॉन्सिक्वेंसेस. और दूसरी एक हमारे पास चीज़ थी, वो हमने Lagrange's theorem से पहले डिस्कस की थी, कि सपोज आई हैव अ ग्रुप G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप and H and K are subgroups of G, then H into K, this set may or may not be a subgroup, but it will be what? It will be a subset of G, and we know the cardinality of this set HK is nothing but order of G into order of H into order of K divided by order of H intersection K. So now let us consider some examples or some application of this counting formula and this Lagrange's theorem. Lagrange's theorem is what? Let me add here, order of H divides order of G, where H is a subgroup of G, and all these properties and this counting formula. So the mixture of these results will gives us some new information. So let us consider some examples. और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमने पहले भी उसको ट्राई की थी करने के लिए, लेकिन उसमें हमें Lagrange's theorem की ज़रूरत पड़ी थी और हमने वो किया नहीं था. Then so we left it. So now let us consider one example. Let G be a group of order 20 cannot have two distinct subgroups of order 5. Just write in this way. If order of G is equal to 20, then G cannot have two distinct subgroups of order 5. तो उसके पास 5 ऑर्डर के 2 सब ग्रुप नहीं हो सकते. 2 मतलब, या 2 का मतलब है डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स नहीं हो सकते 5 ऑर्डर के. सो लेट अस डिस्कस इट्स सॉल्यूशन इन डिटेल. So solution. So let first of all order of G is equal to 20. If possible, H and K, H is a subgroup of G, K is a subgroup of G, H is not equal to K, means distinct, and order of H is same as order of K is equal to 5. मान लो कि G के पास 2 सब ग्रुप है H एंड K, दे आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग हैं, और उसका ऑर्डर 5 है, राइट? ओके. सो नाउ H intersection K is what? H intersection K is a subset of H
and H intersection K is a subset of K also, right? ये जो H है वो एक सब ग्रुप है, K है वो भी सब ग्रुप है, तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो भी सब ग्रुप बनेगा, वो हमने देखा है, सब ग्रुप इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप, तो ये भी एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है, तो दिस इज अ ग्रुप, सो दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ H एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड K इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। तो मतलब H इंटरसेक्शन K एंड H इंटरसेक्शन K H intersection K is a subgroup of H and K both. So now you apply the Lagrange's theorem on this. So by Lagrange's theorem, order of H intersection K divides order of H and order of H intersection K divides ऑर्डर ऑफ K ऑल्सो, बट ये जो H और K का ऑर्डर तो सेम है, 5 है, सो इट इज से 5। तो ये जो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K ये क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइड्स अ प्राइम नंबर, सो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K विल बी 1 और 5, या 1 हो सकता है या 5 हो सकता है, राइट। सो सपोज ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, लेट मी राइट हियर, H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू 5, मान लो कि 5 है, मेरे पास यहाँ दो ही पॉसिबिलिटी है, या इधर 1 और 5, मान लिया कि 5 है, तो क्या हुआ कि ये जो H इंटरसेक्शन K है वो इट इज अ सबसेट ऑफ H इंटरसेक्शन K इज अ सबसेट ऑफ K एंड ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, मतलब उसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और ये 5 क्या है, H का ऑर्डर और K का ऑर्डर, मतलब कि H और K का एक मुझे ऐसा सबसेट मिल रहा है जिसमें H जितने ही एलिमेंट है और K जितने ही एलिमेंट है। तो इससे क्या फॉलो होता है कि दिस H इंटरसेक्शन K मस्ट बी इज इक्वल टू H, क्योंकि H में 5 एलिमेंट है, H में 5 एलिमेंट है और उसका एक सबसेट है जिसके पास भी मेरे पास 5 एलिमेंट है। तो मतलब कोई ऐसा सेट जिसके सबसेट के पास वो उसके सुपरसेट जितने ही एलिमेंट है, देन दैट टू मस्ट बी सेम। एंड सिमिलरली फॉर K के पास 5 एलिमेंट है और उसके जो सबसेट है उसके पास भी 5 एलिमेंट है, सो दिस मस्ट बी K। तो मेरा क्या प्रूव हुआ, K इज इक्वल टू H, बट दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज वी अज्यूम दैट H एंड K आर डिस्टिंक्ट। तो मतलब कि ये H इंटरसेक्शन K में यदि आइदर इट हैज़ 1 एलिमेंट और 5 एलिमेंट, बट इफ यू कंसिडर 5 एलिमेंट्स देन वी गेट समथिंग रॉन्ग, कॉन्ट्राडिक्शन। सो दस ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K मस्ट बी 1। तो मतलब क्या हुआ, ये जो H इंटरसेक्शन K है वो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी ही रहेगा, ऐसा ही होगा, राइट। ओके, तो ये दिस इज अवर वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट order of H intersection K. Okay, so now H and K are subgroups of G. We don't know whether H into K is a subgroup or not, but we can now H into K, this is a subset of G. Now what will be the cardinality of H? Let us see. It will be order of H, order of K upon order of H intersection K. लेकिन ये क्या रहेगा, H में कितने एलिमेंट है 5, K में कितने एलिमेंट है 5, और H इंटरसेक्शन K में हमने प्रूव किया इट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, तो ये क्या हुआ 25। तो क्या हुआ कि ये जो H K है वो G का सबसेट है, G के पास मेरे पास 20 एलिमेंट्स है, order of G is 20 and HK, it is a subset of G, it contains 25 element. So that is something wrong, it is contradiction. कोई सबसेट के पास उसके सुपरसेट से ज़्यादा एलिमेंट आ गए, so that is not true. So why we get this? Because we assume that
G has a two subgroup of order 5 and they are distinct. दोनों अलग अलग है. Yes, उसको 5 ऑर्डर का मिल सकता है. G को यदि 5 ऑर्डर का मिल रहा है then it must be only one. It will not be two. If you assume it has two distinct subgroup, then you will get contradiction in this way, right? So hence G cannot have two distinct subgroups of order 5. तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, राइट? ओके, इसमें जो ये हमने एक पूरी एक प्रोसेस की, राइट? इसमें यू लुक फ्रॉम हियर कि ये मेरा H और K का ऑर्डर क्या था 5. तो ये 5 क्या है? इट इज़ अ प्राइम नंबर, राइट? इट इज़ अ प्राइम नंबर. तो ये 5 के जगह पे मान लो कि वो जो प्राइम नंबर है वो से 7 है और 13 है, वॉट एवर यू कंसिडर सम प्राइम नंबर इन जनरल, एनी P. और मान लो कि H intersection okay, then H intersection K will be the subgroup of H and K both. So H intersection K will divide order of H as well as order of K, but it is a prime, so it is P. So order of H intersection K will be what? It will be 1 or P, right? 1 or P. यदि वो P है, right, then H and K will be the same by the same argument, right? H and K will be the same. तो यदि वो डिस्टिंक्ट है, यदि वो डिस्टिंक्ट है तो कभी वो H इंटरसेक्शन K में मुझे P एलिमेंट्स नहीं मिल सकते, राइट? यदि वो सेम है, मतलब ये यस, इफ यू अज्यूम दैट इट इज डिस्टिंक्ट देन यू विल गेट हियर कॉन्ट्राडिक्शन. बट इफ दे आर सेम देन मे हैपन. तो हो सकता है कि मुझे 5 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप मिल रहे हैं. सपोज 5 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप मिल रहे हैं, सॉरी, यस, व्हाट ही हियर एज्यूम दे आर डिस्टिंक्ट. यस, यदि वो डिस्टिंक्ट है तो आपको यहाँ पे सेम मिल रहा है इन शॉर्ट. सो हियर यू विल गेट द कॉन्ट्राडिक्शन. तो मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरे पास H का ऑर्डर प्राइम है और K का ऑर्डर प्राइम है, राइट? यदि वो डिस्टिंक्ट है तो इन दोनों के बीच में एक ही एलिमेंट कॉमन हो सकता है. कौन? आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी तो हर एक सब ग्रुप पे रहेगा ही. सो कॉमन एलिमेंट विल बी ओनली आइडेंटिटी. और if H intersection K, H and R, K are distinct, then there is nothing common between that two. And if H is equal to K, then all the elements are equal. But this happen only when the order of the subgroup is prime, right? When order of the subgroup is prime. तो ये अपने आप में एक रिजल्ट बन रहा है. So you can write this result also. See, let us write this thing as a result. So let me write here. और दूसरे एग्जाम्पल भी देख रहे हैं ऐसे, लेकिन let me write that result here. So this is a result. Let H and K be a subgroup of G. G and order of H is equal to order of K is equal to P, where P is prime, So if H and K are distinct, यदि वो दोनों अलग अलग है, implies H intersection K is what? It contains only one element, that is singleton E. That is, or you can say order of H intersection K is 1. So this is very simple result, but very important observation at the same time. So how you will give the argument कि ये जो H और K का ऑर्डर क्या है? प्राइम है. तो ये जो H इंटरसेक्शन K है वो H का भी सब ग्रुप है, H इंटरसेक्शन K है वो K का भी सब ग्रुप है.
So order of H intersection K will divide order of H as well as order of K, but its order is prime. So order of H intersection K will be what, 1 or P. If order of H intersection K is prime, तो क्या होगा, ये जो H इंटरसेक्शन K है वो H का सबसेट है, तो H का सबसेट और उसके पास H जितने ही एलिमेंट है P एलिमेंट्स ही है, सो इट विल बी H. सिमिलरली H इंटरसेक्शन K इज अ सबसेट ऑफ K और उसके पास K जितने ही एलिमेंट है, सो इट मस्ट बी K. सो व्हाट वी गेट, K इज इक्वल टू H, बट दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी अज्यूम दैट H एंड K आर डिस्टिंक्ट. सो इट मीन्स व्हाट, सो हैंस दिस H intersection K, order of H intersection K must be 1 and hence H intersection K is equal to singleton E. राइट, मतलब मुझे कहीं से पता चल गया कि मेरे पास कोई ग्रुप है से 100 ऑर्डर, सॉरी वॉट एवर द ऑर्डर इज दैट, बट मुझे पता चल गया कि उसके पास 13 ऑर्डर के 2 सब ग्रुप है. 13 ऑर्डर के उसके पास 2 सब ग्रुप है और दोनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल. तो उसके पास कितने कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, ओनली 1, दैट इज व्हाट आइडेंटिटी. यदि उसमें, तो इससे ये भी पता चल जाए कि मेरे पास 2 13 ऑर्डर के ग्रुप है, राइट, तो 13 इज प्राइम, राइट. सो नाउ दे मस्ट हैव वन एलिमेंट कॉमन, दैट इज आइडेंटिटी. यदि उसमें से एक और एलिमेंट सेम हो गया देन दे मस्ट बी आइडेंटिकल, राइट. तो 2 प्राइम ऑर्डर के सब ग्रुप है और अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो उसके पास सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट हो सकता है, आइडेंटिटी. आइडेंटिटी के सिवा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता. यदि कोई कॉमन मिल गया एलिमेंट आइडेंटिटी के सिवा, then that 2 subgroups must be identical, they are equal, they are not equal. So that is one observation, and we at that observation we used here, right. तो ये ऑब्जर्वेशन को आप एक रिजल्ट की तरह यूज करें, देन यू कैन सॉर्ट दिस आर्ग्यूमेंट लाइक दिस. सो वी हैव फाई, दिस इज अ सब बाय लाग्रांजिस थ्योरम ऑर्डर ऑफ. तो ये जो पूरी आर्ग्यूमेंट है, इसमें से आप क्या क्लेम कर सकते हैं, यहाँ से ये सब कुछ निकल गया, राइट, ये भी निकल गया. सो ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K इज इक्वल टू 5. सो implies order of H intersection K must be 1 by using this result. क्योंकि H का ऑर्डर K का ऑर्डर 5 प्राइम है और दोनों डिस्टिंक्ट है, then number of elements in its intersection must be 1, right. so मतलब हमने यहाँ तक पूरा कर लिया, तो मतलब इस आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है if we use this result. okay, so then we have what, then we have this counting formula and we get immediately with at contradiction. Okay, so now let us consider next example. If order of G is equal to 15, say 15 instead of 20, you consider 15, then G cannot have 2 distinct subgroup of order 5, same thing. So let order of G is equal to 15. If possible, H and K are subgroups of G and H and K are distinct with order of H and order of K is 5. So immediately we have order of H intersection K is 1 by the same argument, or you may use this result. Okay, so now what is cardinality of HK? Order of H into order of K upon order of H intersection K. So what we have, this is 5 into 5 divided by 1, that is 25. तो क्या हुआ, HK is a subset of G, G has 15 element and HK has 25 element. So that is what contradiction. So therefore what, thus G cannot have 2 distinct subgroup of order 5, राइट. मतलब 15 ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो उसके पास 5 ऑर्डर के 2 अलग अलग सब ग्रुप नहीं हो सकते, 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप नहीं होते. अच्छा, एक हो सकता है. सो दैट इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक हो सकता है,
राइट। तो एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कैसे मिलेगा उसका कुछ रीज़न अलग है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन वो 5 ऑर्डर का मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो अपने आप में एक नया प्रॉब्लम है, राइट। वो डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो नाउ यू मे कंसिडर 10 ऑल्सो। देखो 20 से शुरू किया था, 20, 15, then 10. So then G cannot have two distinct subgroup of order 5. So what happened with 10? So here we have 10. और मान लो कि दो सब ग्रुप मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों का ऑर्डर 5 है, तो बाय दैट रिजल्ट यू हैव वन एलिमेंट इन H इंटरसेक्शन के एंड यू हैव द सेम थिंग। तो यहाँ पर G के पास 10 एलिमेंट है और उसका सबसेट के पास 25 एलिमेंट, नॉट पॉसिबल। सो G कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, राइट। तो मतलब कि मुझे यहाँ 25, देखिए दिस इज सिंपल लॉजिक, यहाँ पे एच के की कार्डिनलिटी मुझे 25 मिल रही है। तो जब तक यहाँ पर जो बढ़ जाता है, मतलब ये जो एच के की कार्डिनलिटी जी की कार्डिनलिटी से ज़्यादा हो जाएगी, तब मुझे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, राइट। तो मतलब जी का ऑर्डर 25 से कम लूँ, जी का ऑर्डर मेरा 25 से कम रहेगा, तब तक मुझे जी को 5 ऑर्डर के 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स नहीं मिल सकते। और उसको 5 ऑर्डर का सब ग्रुप होने के लिए जो लाग्रांजिस थ्योरम में ऐसा बोल रहा है कि उसका जो ऑर्डर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। और 25 से कम और 5 से डिविजिबल वाले जो नंबर्स है वो कौन से हैं? 20, 15 एंड 10, नेक्स्ट इज 5। ऑफकोर्स 5 ऑर्डर के सब ग्रुप के पास 2 डिस्टिंक्ट 5 ऑर्डर के सब ग्रुप तो ऑब्वियसली नहीं होते, उसमें ये कुछ रिजल्ट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो दूसरा सब ग्रुप लेंगे 5 ऑर्डर का वो खुद ही है ना, उसका सिवा तो दूसरा उसको मिल नहीं सकता। तो ऑब्वियसली 20, 15 एंड 10। सो यू कैन प्ले विद द डिफरेंट नंबर ऑल्सो विद द सेम लॉजिक। ओके, सो नाउ लेट अस कंसिडर नेक्स्ट वन, say 91. So 91 is what? 17 into 3. Sorry, it's 19. 91. Sorry, 91 is not divisible by 3, right? So it's 17 into 13. 7 3 is at 21. 1 and yes, 91 is what? 7 into 13. So then G cannot have 2 distinct subgroup of order. You can make the result like this, of order 13. 13 ऑर्डर के उसको 2 डिस्टिंक्ट सबग्रुप्स नहीं मिल सकते। 13 इज अ प्राइम, सही। So let order of G is equal to 91. If possible, H and K are subgroup of G. They are distinct and its order is 13. तो 13 प्राइम है, H और K का सब ऑर्डर 13 is prime. They are distinct subgroup. So H intersection K is also a subgroup of H and K. So its order must be 1 or 13. एक होगा या 13 होगा। यदि H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर 13 हो गया, देन इट इज मस्ट बी H और एंड इट मस्ट बी K, सो H इज इक्वल टू K, दैट कॉन्ट्राडिक्शन और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट, वी मस्ट हैव इंटरसेक्शन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज 1. यूज दिस काउंटिंग फॉर्मूला, सो व्हाट आई हैव, इट इज 13 इंटू 13 स्क्वायर 169। तो क्या हुआ, G के पास 91 एलिमेंट है और उसका सबसेट के पास मुझे कितने मिल गए? 169 एलिमेंट। नॉट ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन। सो दस G कैन नॉट हैव 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, राइट। सो सी in general if order of G is P into Q, where, let me add here, where P and Q are prime with P is less than Q, means distinct prime, it is a product of 2 distinct prime.
देन G कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q, मतलब जो बड़ा वाला प्राइम है, लार्जर प्राइम, वो ऑर्डर के दो अलग अलग सब ग्रुप नहीं मिल सकते. सो वी वांट टू जस्ट जनरलाइज दिस रिजल्ट and let us try to give the argument. So let order of G is equal to P into Q, where P and Q are prime, P less than Q. If possible, there are two subgroups H and K of G, both are unequal, and order of H and K are Q. Then by that same argument, H intersection K has only one element common. So order of H intersection K is 1, and you use this counting formula, then this is what? It is Q into Q. So order is what? It is a Q square. तो मेरे पास क्या हुआ, ये जो G में कितने एलिमेंट है, P इंटू क्यू है, और H के में Q इंटू क्यू, दैट इज Q स्क्वायर एलिमेंट. तो ये तो ज़्यादा हो गया ना. सी Q इक्वल टू Q, बट P इज स्मॉलर देन Q. तो H के में G से ज़्यादा एलिमेंट मिलके, सो दस G कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर Q. सो दिस इज द जनरल रिजल्ट, राइट. तो ये रिजल्ट के लिए हमने क्या किया, लाग्रांजिस थ्योरम यूज़ किया और काउंटिंग फॉर्मूला यूज़ की. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि मतलब आगे जाके हम काउंट करेंगे कि मुझे कोई ग्रुप दे दिया है तो उसको कितने ऑर्डर के सब ग्रुप मिल रहे हैं, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. अब मिल रहे हैं तो वो कितने मिल रहे हैं, एक से ज़्यादा है या एक ही मतलब यूनिक है. सो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग. सो इन दैट केस इफ़ योर ग्रुप हैज़ ऑर्डर P इंटू क्यू, तो ये जो बड़ा वाला प्राइम है उस ऑर्डर का उसको एक ही सब ग्रुप मिल सकता है. और देखिए वन इंटरेस्टिंग थिंग, सी order of G is PQ, P and Q are prime, Q is a larger prime, और उसको एक Q ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिल रहा है. अब वो जो Q ऑर्डर का मिल रहा है तो Q तो प्राइम है, और आगे हमने देखा एनी सब ग्रुप और एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. तो ये सब ग्रुप मिल रहा है तो वो अपने आप में ग्रुप तो है और उसका ऑर्डर प्राइम है, सो इट मस्ट बी साइक्लिक. तो आप कह सकते हैं कि इफ़ योर ग्रुप हैज़ ऑर्डर P इंटू क्यू, P Q प्राइम P लेस देन Q, देन G मस्ट हैव एग्जैक्टली वन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Q, दैट इज ऑफ ऑर्डर लार्जर प्राइम. मतलब ऐसा मुझे दे दिया कि सपोज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 5 इंटू 23, वट एवर दिस नंबर इज. तो मुझे ये G कोई भी ग्रुप है, पता नहीं फंक्शन का ग्रुप है, मैट्रिसेस का है, नंबर्स का है, वी डोंट नो, बट ये ग्रुप के पास 23 ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप है और एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है. ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 7 इंटू 19, वट एवर द नंबर इज. तो ये ग्रुप के पास 19 ऑर्डर का एग्जैक्टली वन साइक्लिक सब ग्रुप है. 19 ऑर्डर का एक ही होगा, 19 ऑर्डर का. अच्छा 7 ऑर्डर के कितने रहेंगे, सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल काउंट इट. तो ये 7 ऑर्डर के हैं ना, आपके पास 19 सब ग्रुप रहेंगे. 7 ऑर्डर के 19 होंगे और 19 ऑर्डर का एक ही होगा, लेकिन वो 7 ऑर्डर के 19 मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे उसके लिए हमें और कुछ चीज़ चाहिए, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ से हमें इतना पता चला. सो दिस इज व्हाट some problems. Now let us consider if order of G is equal to say 75. G का order 75 है. Then G cannot have two. Now let me remove this. Then G cannot have two distinct subgroups of order 25. उसके पास 25 ऑर्डर के दो अलग अलग सबग्रुप नहीं हो सकते. So let us try to prove this. तो देखिए ये मुझे यहाँ पे कोई नंबर दे दे और यहाँ से बोले कि इस ऑर्डर के दो सब ग्रुप नहीं हो सकते, तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट रिमेंबर, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट, हाउ वी गिव द आर्ग्यूमेंट टू शो दैट, राइट. सो से लेट ऑर्डर ऑफ G इज 75. If possible, H and K are two subgroups of G and they are distinct, and H और K के ऑर्डर है मेरे पास 25. तो ये H इंटरसेक्शन
के में कितने एलिमेंट्स रहेंगे। तो देखिए हियर आई हैव 25, इट इज़ नॉट प्राइम, सो आई कांट यूज दिस रिजल्ट, राइट। सो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के विल बी व्हाट, आइदर 1 और 5 और 25, इसमें से ही हो सकता है। एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर क्या हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 25 हो सकता है। इसके से बाय लाग्रांजिस थ्योरम, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के इज अ सब ग्रुप ऑफ एच एंड के बोथ, सो इट विल डिवाइड्स, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के विल डिवाइड्स 25, और 25 के डिवाइजर यही है। ओके, सो नाउ so implies order of H intersection K is not equal to 20, ये 25 नहीं होगा। क्यों? Because is not equal to 25 because if order of H intersection K is equal to 25 implies H is equal to H intersection K, क्योंकि H intersection K है वो H का सबसेट है, और H के पास 25 एलिमेंट्स है, और उसके सबसेट के पास भी 25 एलिमेंट है, और वो सब ग्रुप है, दैन इट मस्ट बी इक्वल, एंड सिमिलरली इट विल बी K, एंड दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज आवर H एंड K आर डिस्टिंक्ट, राइट। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू 1 और 5, आइदर इट हैज 1 एलिमेंट और 5 एलिमेंट्स। सो नाउ अगेन you use the counting formula, HK is what, order of H into order of K डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, H और K के पास कितने एलिमेंट है, 25, 25, 25, 25। अब ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K में 1 एलिमेंट है और 5 एलिमेंट है। तो 1 एलिमेंट है तो यहाँ पे 1, 5 है तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे एलिमेंट्स और है 625 और यहाँ पे 125, राइट। सो देयरफॉर H इंटरसेक्शन H इंटू K इज अ सबसेट ऑफ G, और G के पास मेरे पास कितने एलिमेंट है, 75, और यहाँ पर मुझे कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, आइदर 625 और 125। तो मतलब एक ग्रुप है जिसके पास 75 एलिमेंट है, लेकिन उसके सबसेट के पास इतने एलिमेंट नहीं हो सकते, वो ग्रुप से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। सो दैट इज़ व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन। सो व्हाई वी गेट दिस कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज वी अज्यूम दैट H इंटरसेक्शन के हैज 1 और 5 एलिमेंट, देन वी गेट दिस थिंग। मतलब कि ये 1 और 5 हो नहीं सकते, तो कितने हो सकते हैं, तो 25 ही हो सकते हैं। तो यदि वो H इंटरसेक्शन के में 25 एलिमेंट मिल गए तो H इंटरसेक्शन के दोनों सेम हो जाते हैं। तो लेकिन हमने तो वो अलग अलग एज्यूम किया था, डिस्टिंक्ट है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 75 कैन नॉट हैव 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। तो आप यहाँ से ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 75, बट 75 इज व्हाट, 3 इंटू 25, 25 is what, 5 square. So 3 is prime, 5 is prime. So can you try, it is in general that suppose order of G is equal to P into Q square, P, Q are prime, P less than Q, then this G does not have 2 distinct subgroup of order Q square. Q square order के 2 subgroups नहीं मिल सकते, right? So you try to generalize this result in this way, and I leave it into the exercise that you verify. I'm not I'm not telling you that this result is true, but you verify and then you decide whether it is true or not, right? Okay, so this is what some analysis about the subgroup of some order of some order when the order of a group is given. अच्छा, तो देखिए ये जो लाग्रांजिस थ्योरम मिल गया, तो वहाँ से हमें लाग्रांजिस थ्योरम ने तो सिर्फ यही बोला था कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बट विथ द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन नो सो मेनी थिंग्स अबाउट द ग्रुप, कि उसको ये ऑर्डर का सब ग्रुप मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, और मिल रहा है ये ऑर्डर का
then it must be only one. It is not too distinct for some particular order. So let us discuss one thing: existence of subgroup with respect to divisibility of order of G. So now we discuss the next topic: existence of subgroup of group G with respect to divisibility of order of G. तो इसमें हम थोड़े रिजल्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, और थोड़े रिजल्ट्स ऐसे रहेंगे जो हमने डिस्कस नहीं किए. विल प्रूव इट लेटर ऑन, बट राइट नाउ वी एक्सेप्ट इट विदाउट प्रूफ. तो हमारे पास पहला रिजल्ट आता है लाग्रांजिस थियरम, राइट. लाग्रांजिस थियरम, एंड दैट इज व्हाट? If G is finite, then order of G is finite and H is a subgroup of G, then order of H divides order of G, right? Order of H divides order of G. And the second thing is what? Converse of Lagrange's theorem is not true. ये हमने आई थिंक डिस्कस किया था. कन्वर्स ऑफ लाग्रांजिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, बट वी हैव नॉट गिवन वन एग्जांपल, सो लेट अस डिस्कस हियर. देखिए, सपोज मेरे पास कोई ग्रुप का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जी इज 12, राइट. तो लाग्रांजिस थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि उसके पास कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. मतलब यदि कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन दैट नंबर कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ इट्स सब ग्रुप. वो नंबर उसके सब ग्रुप का ऑर्डर नहीं हो सकता. दैट इज, इट कैन नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर. तो जी का ऑर्डर मेरे पास 12 है, पता नहीं जी कैसा है, अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, साइक्लिक है, नॉन, वो पता नहीं, उसका ऑर्डर 12 है. जस्ट वी नो दैट इट इज़ अ फाइनाइट ग्रुप. तो अब ये 12 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? सो 1 12, 2 6, 3 एंड 4. सो 12 के डिवाइजर्स मुझे इतने ही मिलेंगे. 1 2 3 4 5 6 डिवाइजर्स हैं, राइट. तो हियर 6 डिवाइड्स, मतलब जी के कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर इन्हीं में से है, इसके सिवा कोई नहीं हो सकता. और ये ऑब्वियसली ये जो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो कौन सा है? सिंगलटन ई. और ये 12 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो कौन सा है? जी इटसेल्फ. तो बाकी बचे ये 4 एलिमेंट्स, ये 2 ऑर्डर के तो मिल ही जाएंगे आपको, सिंगलटन ई एंड जी इटसेल्फ. तो यदि उसका जो कोई ऑर्डर है सब ग्रुप का तो इन्हीं में से होगा, राइट. ओके, हियर 6 डिवाइड्स 12. 6 divides 12. So can we say that G has a subgroup of order 6? So no, we can't say that because converse of Lagrange's theorem is not true. वो हम Lagrange's theorem से वो क्लेम नहीं कर सकते. तो इसके लिए मुझे कोई एग्जाम्पल चाहिए. So let me give one example. Let G is equal to A4. तो ये A4 क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, थोड़े लेक्चर के बाद ही हम देख लेंगे, क्योंकि ये अब इसका यूज़ आना शुरू हो गया. सो वी हैव टू डिस्कस दिस. वी विल डिस्कस SN, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑन एन सिंबल. तो उसका एक सब ग्रुप मिलता है AN. AN इज अ सब ग्रुप ऑफ SN, राइट. तो ये होता है कुछ सब ग्रुप. अभी आपको वैसे आप पढ़े होंगे BSc MSc में, बट हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया. सो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल, बट A4 इज अ सब ग्रुप. लेट G बी sorry, it is a group, it is a subgroup, so itself a group. So let G is equal to A4, then order of G will be what? Then this order of G, that is order of A4, ये कितना रहेगा? 4 factorial by 2.
4 है तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 वो हम आगे जाके देखेंगे. सो इट विल बी 24 बाई सॉरी इट इज़ 4 फैक्टोरियल, इट इज़ 24 बाई 2 दैट इज़ 12. तो मतलब G मेरे पास 12 ऑर्डर का एक ग्रुप है. बट A4 डू नॉट हैव एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. उसके पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं है. क्यों नहीं है वो जब हम A4 पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उसके पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं. इट डज नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. तो व्हाट वी हैव प्रूव, आई हैव अ ग्रुप whose order is 12, 6 divides 12, but that group does not have subgroup of order 6, and 6 is a divisor of order of group. So this is a counter example to show that converse of Lagrange's theorem is not true. But later on you will get so many example which gives you counter example for the converse of Lagrange's theorem, right? तो ये A4 नहीं, ऐसे तो बहुत सारे मिलने वाले हैं, लेकिन बट यहाँ पे हम एक एग्जांपल देना चाहिए ये जब स्टेटमेंट लिखते हैं. सो हियर आई जस्ट राइट फॉर एग्जांपल, यू जस्ट रिमेंबर A4. तो यदि इंटरव्यू में आपको कोई पूछे कि कन्वर्स ऑफ लाग्रांज थ्योरम इज ट्रू, देन ऑब्वियसली इट इज नॉट राइट, एंड देन इमीडिएटली दे विल आस्क, सो डू यू हैव एनी एग्जांपल ऑफ सच ग्रुप which violate the converse of Lagrange's theorem? Then you have to say yes, it is A4, right? ओके. तो नेचुरल क्वेश्चन क्या रहता है कि यदि कोई स्टेटमेंट है आपके पास उसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है इन जनरल, देन द नेचुरल क्वेश्चन इज व्हाट, डू यू हैव सम एनी कंडीशन और सम रिस्ट्रिक्शन so that its converse becomes true? Then in the case of Lagrange's theorem, so we have some condition, and the next result is this one: converse of Lagrange's theorem is true for finite abelian groups. ऑफ कोर्स मुझे यहाँ फाइनाइट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिटरेचर में आपको मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि वेन एवर वी टॉक अबाउट द लाग्रांजिस थ्योरम, लाग्रांजिस ने बहुत सारे थ्योरम दिए हैं, राइट, नॉट ओनली इन ग्रुप थियरी, he has contribution in other branches of mathematics also, but whenever we talk about the group theory and Lagrange's theorem, then it is this one, order of H divides order of G, and we can talk about the divisibility only in the case of finite, right? But be specified. So converse of Lagrange's theorem is true for finite abelian group. देखिए यहाँ पे मैंने जो कौन सा ग्रुप लिया था, A4, राइट? तो ये जो A4 है ना वो नॉन अबेलियन है, वो हम देखेंगे. लेकिन मुझे ऐसा बोल दिया जाए कि ऑर्डर ऑफ G इज 12 एंड G इज अबेलियन, राइट? तो क्या होगा यार, व्हाट आर द डिवाइजर ऑफ 12? 1 12 2 6 3 4. तो 6 divides 12, so G has a subgroup, at least one. So I write G has a subgroup of order 6. A4 के पास नहीं, क्योंकि वो नॉन अबेलियन है, राइट, और नहीं है, वो अपने आप में एक अलग रीज़न है, वो विल डिस्कस इट. लेकिन मुझे ऐसा बोल दे कि मेरे पास कोई 12 ऑर्डर का ग्रुप है और वो अबेलियन है, देन आई कैन गिव द गारंटी दैट G हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6. उसके पास 6 ऑर्डर का एक सब ग्रुप रहेगा ही. नॉट ओनली 6, उसके पास 1 ऑर्डर और 12 ऑर्डर के तो ग्रुप्स सब ग्रुप्स है ही. यदि वो अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, डजेंट मैटर. 12 ऑर्डर का वो अपने आप में और 1 ऑर्डर का सिंगलटन ही. तो ये बाकी के ऑर्डर का हमें पता नहीं था विद द हेल्प ऑफ कॉन्वर्स. बट अब मुझे बोल दिया कि G इज अबेलियन, तो उसके पास 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप है, 3 ऑर्डर का भी है, 6 ऑर्डर का भी है और 4 ऑर्डर का भी है. अब कितने हैं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वो हम आगे जाके एनालाइज करेंगे कि भी कितने मिल रहे हैं. 6 ऑर्डर का मिल रहा है कितने, 1 है, 2 है, 3 है, कितने मिल रहे हैं, राइट? ओके. देखिए, एक ऑर्डर का मुझे 6 ऑर्डर का मिल रहा है, 6 ऑर्डर का मिल रहा है, तो कितने मिल सकते हैं? तो मान लो कि उसको 2 मिल रहे हैं, H और K 2 मिल रहे हैं.
एच के इज आर सब ग्रुप ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल टू 6, एंड सपोज दो मिल रहे एच एंड के आर डिस्टिंक्ट, तो क्या होता है देखते हैं। तो ये एच इंटरसेक्शन के में कितने एलिमेंट रहते हैं, तो एच इंटरसेक्शन के इज अ सब ग्रुप ऑफ एच एज वेल एज के, तो एच इंटरसेक्शन के में कितने एलिमेंट है 6 के डिवाइजर, सो 1 और 2 और 3 और 6 तो हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, तो आइदर 1 और 2 और 3, राइट। तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, कार्डिनलिटी ऑफ एच के इज व्हाट ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो क्या रहेगा एच के का ऑर्डर क्या है 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 1 और 2 और 3, तो यहाँ से मेरे 3 केस बन रहे हैं, तो 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 1, 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 और 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 3, तो क्या हुआ यहाँ पे मुझे मिला 36, यहाँ पे मिला 2 कैंसल, सो इट इज़ 3, सो इट इज़ 18, और यहाँ से मिला मुझे 2, सो इट इज़ 12, राइट। तो एच के इज अ सबसेट ऑफ जी, जी के पास कितने एलिमेंट है 12 एलिमेंट है, तो एच के पास कितने हो सकते हैं 36 और 18 और 12, तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, दिस टू आर नॉट पॉसिबल। तो मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसको 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप नहीं मिल रहे हैं, उसको 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे मुझे 2 सब ग्रुप मिल गए एच और के 6 ऑर्डर के, जिसके पास 3 एलिमेंट कॉमन है, 3 एलिमेंट्स आर इक्वल, राइट, इसके इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट है, देन दे आर नॉट इक्वल डिस्टिंक्ट एंड सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इफ आई हैव अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 and it has 2 distinct subgroup of order 6, then its intersection to distinct subgroup of order 6, then its intersection must contain 3 elements. These two are not possible, and this is not possible because they are distinct. यदि डिस्टिंक्ट है और उसके पास एक ही एलिमेंट कॉमन है या 2 एलिमेंट कॉमन है, देन एच इंटरसेक्शन के विल कंटेन्स 36 and 18 एलिमेंट्स, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, सो इट्स इंटरसेक्शन मस्ट कंटेन 3 एलिमेंट। तो यहाँ से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली कि हम ये क्लेम नहीं कर सके कि उसको 2 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यदि जो मिल रहे हैं डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, तो उसके बीच में कॉमन कितने हो सकते हैं 3 एलिमेंट ही कॉमन हो सकते हैं, उसके बीच में 1 या 2 एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकते, राइट। सिर्फ 2, 3 है तो 2 कॉमन है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉमन वी कांट से, ओनली 1 एलिमेंट इज कॉमन, नो वी कांट से, इट हैज एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स कॉमन, and of course all elements are not common. If all elements are common, then H and K will be equal, but we start with they are not equal. So see, in this way you just manipulate, you have order of group, you have some information and you have some results, then you just try to apply that results on that and you will get some new things. Okay, तो हमारे पास ये 3 चीज़ आई कि लाग्रांजिस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ लाग्रांजिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, बट इफ योर ग्रुप इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप देन इट्स कॉन्वर्स इज ट्रू, राइट। तो ये हमने देखिए प्रूव नहीं किया है, ये प्रूव नहीं किया है, बट थोड़े मुझे ये प्रूव करने के लिए मुझे और कुछ रिजल्ट्स चाहिए जो हमने प्रूव नहीं किए हैं, विल एक्सेप्ट इट विदाउट प्रूफ, और वो हम आगे जाके प्रूव करेंगे, सिलोस थ्योरम के बाद प्रूव करेंगे, लेकिन अभी से हम ये मान लेते हैं, सो दिस इज़ विदाउट प्रूफ, सो वी अज्यूम दिस विदाउट प्रूफ, राइट। और अभी हम 2-3 रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, ओके ये हो रहा है, राइट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट रिजल्ट, 4th one. Okay, before going that result, let me consider this discussion. Let order of G is 144. 144 order का कोई ग्रुप है, I don't know whether it is abelian or non-abelian, finite ग्रुप है। ओके, तो ये 144
144. Okay, let me consider a smaller number. Then I will go for 144. So 24. So it is what 2 cube into 3. और यदि आप इसके डिवाइजर की बात करें, so it will be 124, 2 12, 3 8 and 4 6. Yes, so it has how many divisor? 3 plus 1 4, 4 into 2 8. डिवाइजर्स कितने रहेंगे? 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू 1. सो टाउ फंक्शन, सो इट इज 3 plus 1 into 1 plus 1, that is 4 into 2, so it is 8. 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 डिवाइजर्स मिले, राइट? ओके. Okay, now my group, I don't know whether it is abelian or non-abelian. यदि मेरा ग्रुप 24 ऑर्डर का है तो उसको 1 ऑर्डर का तो सब ग्रुप मिल ही रहा है सिंगलटन ई, और 24 ऑर्डर का मिल ही रहा है, दैट इज जी, राइट? ओके. if say G is an abelian ग्रुप, तो ये सब ऑर्डर्स के भी मुझे उसको सब ग्रुप्स मिलेंगे, बिकॉज कॉन्वर्स ऑफ लाग्रांज थ्योरम इज ट्रू फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. यदि ये G मुझे अबेलियन दे दिया, देन आई विल ऑल्सो हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 3 4 12 8 6. ये सब ऑर्डर के भी मेरे पास सब ग्रुप है. ओके, बट इफ माई ग्रुप इज नॉट अबेलियन, मान लो कि वो अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन है, तो ये दोनों ऑर्डर के तो मिलेंगे. 1 ऑर्डर का मिलेगा, 24 ऑर्डर का मिलेगा, और ये इसके बारे में कुछ अब पता नहीं है, इस ऑर्डर के बारे में पता नहीं, वी डोंट नो. बट वी हैव कॉचेस थियरम. कॉचेस थियरम, again I am not giving the proof of this theorem. The proof of theorem we will discuss later on. ये मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ ऐसे मुझे टूल्स चाहिए, लेकिन वो अभी मैं प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना क्या है कि जो टूल्स चाहिए वो नहीं है, राइट? सिर्फ आई हैव ओनली लाग्रांज थ्योरम. वी फॉर दैट वी नीड सम क्वेश्चन स्पेस एक्सेट्रा, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. लेकिन हम उसको विदाउट प्रूफ मान लेंगे और उसको यूज करना शुरू कर देंगे, राइट? ओके, तो व्हाट इज कॉचेस थ्योरम? लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप, लेट P बी अ प्राइम. ये मेरे पास कोई प्राइम इंटीजर है, प्राइम नंबर है. इफ P divides order of G, then G has an element of order P. तो देखिए ये कॉचेस थ्योरम क्या बोल रहा है कि यदि मेरे पास G कोई फाइनाइट ग्रुप है, देखिए यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि ये अबेलियन है या साइक्लिक है, इट मे बी नॉन अबेलियन, राइट? कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, और यदि मुझे कोई प्राइम मिल गया, P बी अ प्राइम such that P divides order of G, ग्रुप के ऑर्डर को किसी प्राइम ने डिवाइड कर दिया, then this result says that G has an element of order P. तो देखिए यहाँ पे क्या 2 is what? 2 is prime and 2 divides order of G, that is what? 24, उसको डिवाइड कर रहा है. तो by Cauchy's theorem G has an element of order 2. मैं उसको नाम दे देता हूं A. That is A belongs to G and order of A is 2. आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा मुझे G में by this result, right? तो अब मैं क्या करता हूं, से you consider H is equal to subgroup generated by A. Then you let this, तो क्या होगा? then this H is what? it is a subgroup of G. और ये order of H क्या रहेगा? order of H is same as order of A. we had discussed this thing. और A का ऑर्डर क्या है? 2. तो मुझे क्या मिला? G को एक ऐसा सब ग्रुप मिल रहा है H
जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब उसको 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 प्राइम था तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल गया। ओके, प्राइम था और वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी कर रहा था, राइट। सो 2 इज अ प्राइम एंड इट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सो आई हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। देखो 5 इज प्राइम बट 5 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी को 5 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, वो तो लाग्रांज थ्योरम से ही पता चल जाएगा ना कि 5 इज अ प्राइम बट 5 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, सो जी कैन नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, बट 2 इज अ प्राइम, 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, सो जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, राइट। तो यहां से मुझे क्या मिला था, ये जो थियरम है वो मुझे एलिमेंट के एग्जिस्टेंस की गारंटी दे रहा है। इट गिव्स द गारंटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ प्राइम ऑर्डर वेयर प्राइम डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो वो जो प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट था उसके हेल्प से मैंने एक सब ग्रुप बना लिया। ये टेक्निक से मैंने ये बोला था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टेक्निक, सिंपल बट इट इज पावरफुल टेक्निक, राइट। तो ये एक सब ग्रुप बना लिया और उसको एक सब ग्रुप मिल गया वो 2 ऑर्डर का, राइट। तो ये जो थियरम है मुझे प्राइम ऑर्डर के एलिमेंट के एग्जिस्टेंस की गारंटी दे रहा है, लेकिन उसकी हेल्प से सब ग्रुप बनाने से मुझे सब ग्रुप मिल रहा है। सो हैंस, तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ इस रिजल्ट को। सो लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, लेट पी बी अ प्राइम, इफ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी एंड हैंस अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, तो उसको पी ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिल जाएगा। तो देखिए ये 24 ऑर्डर का मेरे पास कोई ग्रुप है, अब पता नहीं वो फाइनाइट ग्रुप है, वो अबेलियन है या अबेलियन नहीं है। अबेलियन है तो सब ऑर्डर के सब ग्रुप्स मिलेंगे मुझे, ये जो डिवाइजर है वो सब ऑर्डर के सब ग्रुप्स मिलने वाले हैं। लेकिन वो नॉन अबेलियन है तो भी 2 ऑर्डर का मिल गया, बिकॉज 2 इज व्हाट, प्राइम डिवाइजर ऑफ 24। Similarly 3 is a prime divisor, so 3 is what, 3 is prime and 3 divides order of G, so G has an element of order 3. Say it is B, so B belongs to G such that order of B is what, order of B is 3. So you consider H is equal to subgroup generated by B, then H is a subgroup of G and order of H is same as order of B and it is 3, so G has a subgroup of order 3. तो 2 और 3 ऑर्डर के सब ग्रुप्स मिल गए मुझे, राइट। तो थोड़ा मुझे और इन्फॉर्मेशन मिली थोड़ी, क्या कि जी का ऑर्डर 24 है, तो उसके सब ग्रुप के ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसके सिवा के ऑर्डर के सब ग्रुप मिल नहीं सकते। 1 ऑर्डर का और 24 ऑर्डर का मिल ही जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ द सब ग्रुप। और ये जो मैं अब कॉचीज थ्योरम अप्लाई करूँ तो ये 2 और 3 आर 2 एंड 3 आर प्राइम डिवाइजर्स, तो इसके ऑर्डर के भी मुझे सब ग्रुप मिल रहे हैं। तो बाकी बचा ये 4 12 8 एंड 6, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं। सो कैन वी से, सो फॉर दैट, तो अब मतलब इतने रिजल्ट से इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे और कुछ रिजल्ट्स चाहिए। सो दैट नेक्स्ट रिजल्ट इज वॉज सिलोस फर्स्ट थियरम। देखिए अभी मैं ये सिलोस फर्स्ट थियरम ये वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिलोस अभी बहुत दूर है, लेकिन अभी हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए मैं वहाँ से डायरेक्ट उठा लेता हूँ विदाउट प्रूफ। ये कोचेस भी बहुत दूर है अभी, राइट, लेकिन हमने ये डिस्कशन के लिए विदाउट प्रूफ हमने ये ले लिया है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट दैट थियरम फर्स्ट। So silos or silos, it has 2 pronunciations, silo or silo. Silos first theorem. Let G be a finite group and let P be a prime. Let P be a prime. If P raised to K, of course K is positive integer, K is what,
1 2 3 and so on. P raised to 0 is 1, so P raised to 0 is 1, it will not be the interesting case, but K is not negative. So if P raised to K divides order of G, then G has at least one subgroup of order P raised to K, right? तो ये let us try to first understand what is Sylow's first theorem. देखो G मेरा कोई फाइनाइट ग्रुप है. So see, what is the beauty about the Cauchy's theorem and Sylow's theorem? See, they are giving some information about a group, about a finite group, right? But there is no condition on the group. It is of abelian, non-abelian, cyclic, non-cyclic. There is no condition, right? So it is about any finite group. So that is the beauty of Sylow's theorem and Cauchy's theorem. Okay, so let J be a finite group. हमने एक finite group लिया. P is what? P is some prime number. P is some prime number. और यदि ग्रुप के ऑर्डर को P का पावर डिवाइड कर रहा है, कोई भी P का पावर ले लो, यदि वो डिवाइड कर रहा है, तो ये थियरम बोल रहा है कि G हैज़ एटलीस्ट वन सब ग्रुप. उसको कम से कम एक P रेस टू K ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा, राइट? सो यू कंपेयर दिस टू रिजल्ट. यहाँ से मुझे क्या था मिला था कॉचीज थ्योरम से, G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड P बी अ प्राइम एंड P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, देन P हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P एंड हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P. तो उसको P ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल रहा था. तो यहाँ पे मैं K इक्वल टू 1 ले लूँ. इफ़ यू टेक K इक्वल टू 1, सो नाउ लेट अस रीड विथ K इक्वल टू 1. So let G be a finite group, P be a prime. If P divides order of G, then G has at least one subgroup of order P, because K equal to 1. So if you take K equal to 1 here, then this Sylow's theorem becomes Cauchy's theorem. So Cauchy's theorem is a particular case of Sylow's first theorem. और ये हमारा मैंने बोला था कि ये जो मॉडर्न एल्जिब्रा है, ग्रुप थियरी का पहला माइलस्टोन कौन है? लाग्रांजिस थियरम. एंड दिस थियरम इज बिलीव टू द सेकंड माइलस्टोन. ये तो बहुत दूर है, अभी हमने प्रूव नहीं किया, लेकिन वी जस्ट स्टार्ट टू यूज इट. ओके, सो फर्स्ट थिंग, Sylow's first theorem is a particular case of Cauchy's first theorem. That is one thing. And now let us apply this theorem here. So here this 4 is what? Okay, so let us once again recall. मेरे पास G कोई ग्रुप है 24 ऑर्डर का, तो उसके पास कोई सब ग्रुप मिल रहा है, उसको कोई सब ग्रुप मिल रहा है, देन इट्स ऑर्डर इज वन ऑफ देम. यही ऑर्डर के हो सकते हैं, इसके सिवा हो नहीं सकते. हो सकते हैं वो पता नहीं है, मतलब मिलेंगे ही वो पता नहीं है, लेकिन यदि मिल रहे हैं देन इट दे मस्ट हैव ऑर्डर अमोंग दिस ओनली, राइट? तो 1 ऑर्डर का तो मिलेगा ही, 24 ऑर्डर का ही मिलेगा. और ये 2 और 3 ऑर्डर के बाय कॉचीज थियरम वो मिल गए में. अब ये 4 इज व्हाट? 4 इज व्हाट? इट इज अ 2 स्क्वायर. 4 इज 2 स्क्वायर. सो 2 is prime and 2 square divides order of G. So G has at least one subgroup of order 2 square by Sylow's first theorem. तो मुझे ये 2 square divides order of G, right? So by Sylow's first theorem, G has a subgroup of order 2 square, that is 4. एक तो मिलेगा ही, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो कितने मिलेंगे? हाउ मेनी? द एग्जिस्टेंस इज गारंटेड. नाउ एक तो मिलेगा ही, एक से ज़्यादा मिल रहे कि नहीं रहे?
मिल रहे, फॉर दैट वी नीड सम फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर दैट वी नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रुप. सो वी दैट थिंग विल नॉट डिस्कस राइट नाउ. उसके लिए हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कितने मिल रहे हैं. ओके, अगेन हियर 2 इज प्राइम, तो मतलब ये 4 ऑर्डर का तो मिल गया राइट. 4 ऑर्डर का आपको एक सब ग्रुप तो मिलेगा ही. नाउ अगेन 2 इज प्राइम, 2 क्यूब is what? It is 8, and 8 divides order of G, that is 24. So again by this Sylow's first theorem, G has at least one subgroup of order 2 cube by Sylow's first theorem. तो ये जो 8 है that is what? It is 2 cube. तो इस ऑर्डर का भी मुझे मिल गया. तो बाकी बचे ये 12 और 6, ये 12 ऑर्डर और 6 ऑर्डर. इन 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स मिलेंगे कि नहीं? सो दैट इज अ क्वेश्चन राइट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस मैनी रिजल्ट्स वी कांट गिव द गारंटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 12. 6 ऑर्डर का और 12 ऑर्डर के सब ग्रुप के एग्जिस्टेंस की गारंटी ये हमने ये जो 5 रिजल्ट्स देखे उसकी हेल्प से नहीं कर सकते. फॉर दैट वी नीड सम मोर थिंग. ओके, तो सी इफ आई हैव अ ग्रुप ऑफ सम ऑर्डर देन आई हैव नाउ सो मेनी इंफॉर्मेशन राइट. ओके, सो नाउ लेट अस discuss the same thing with some different number. So let me consider order of G is equal to say 144. 144 is what? 2 raised to 4 into 3 square, 16 into 9. Yes, it is 144 right. Okay, so इसके कितने डिवाइजर्स मिलेंगे मुझे? It has 15 divisors. See, it has 15 divisors right. If you want let us try to write down all the divisors. तो कौन कौन से रहेंगे? एक तो 1, 144, then 2, 2 then 72, and if it is 3 then it is, this is what? It is 16 into 48 right. 4 then 4 is here, 9 into 4 it is 36. 5 is not there, 6, yes it is 6. तो 6 में से मैंने क्या किया? इसमें से मैंने 3 ले लिया और इसमें से मैंने 2 ले लिया. तो यहाँ पे बचा 2 क्यूब इंटू 3, 24. तो देखिए ये एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं. फिर 4 is not 6, 7 is not there, 8 is there. Yes, if it is 8 तो यहाँ पे बच्चा मेरा 2, 18. कितने? 1 2 3 4 5 6, 12 तो हो गए. और कितने हैं मेरे पास? 15. ओके, नाउ 9 then it is 16 and the next the last one is what? 12. 12 then 12 square is 144, so it is 12. So कितने डिवाइजर्स मिलेंगे? तो 2 raised to 4, so 4 plus 1 it is 5 and 3 squares 2 means 2 plus 1 it is 3, so 5 into 3 so it is 15. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, so all 15 devices are there. अच्छा, तो मेरे पास अब ग्रुप क्या है? 144 ऑर्डर का ग्रुप है. अब देखो यदि वो पता चल गया कि वो अबेलियन है देन आई हैव अ सब ग्रुप ऑफ एवरी ऑर्डर अमॉन्ग दिस. 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 4 ये हर एक ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है. यदि वो नॉन अबेलियन है फिर भी मुझे ये तो मुझे सिंगलटन ई और ये जी इटसेल्फ मिल ही रहा है. नाउ 2 3 एंड 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, तो ये 2 ऑर्डर के मुझे सब ग्रुप बाय कॉचीज थियरम और सिलोस फर्स्ट थियरम मिल रहे हैं, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 देन सिलोस रिड्यूस टू कॉची.
अब नाउ 4 इज व्हाट, इट इज 2 स्क्वायर, 8 is what, it is 2 cube, 9 is what, it is 3 square, 16 is what, it is 2 raised to 4, राइट। तो मुझे 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 8 ऑर्डर, 9 ऑर्डर एंड 16 ऑर्डर। तो इस ऑर्डर के तो मुझे सब ग्रुप मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मतलब इसमें if I just let me remove this, तो मतलब ये 1 ऑर्डर, 144, 2, 3, 4, 8, 9 एंड 16। तो इस ऑर्डर के तो मुझे मिल ही गए सब ग्रुप। I definitely get सब ग्रुप of this order, right? But what about 6, 12, 18, 24, 36, 48, 72? For that we can't give the guarantee. उसके लिए पता नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। Yes, if say G is a abelian group, तो ये ऑर्डर के भी मुझे मिल जाएंगे। If I do not have any information about G, I just know its order is 144, then I can say it has a subgroup of order 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16 and 144। कितने मिल रहेंगे वो दैट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अच्छा, वो अबेलियन है तो मुझे ये 6 ऑर्डर का भी मिल जाएगा, 12 ऑर्डर का भी मिल जाएगा, 72 ऑर्डर, ये सब ऑर्डर के मिल जाएगा। सो लेट अस सी हाउ वी गेट 6 order subgroup if G is abelian. Okay, so now I assume that G order of G is 144 plus G is abelian. मान लो कि अब abelian, मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन ले ली। Now suppose G is abelian. See, so by this Cauchy's theorem, what I have, G has an element of order 2 because 2 divides 2 and 3 are prime. Let me write 2 is prime, 3 is prime, and 2 divides order of G and 3 divides order of G. So by Cauchy's theorem, G has element of order 2 and 3, say A and B रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, ए का ऑर्डर क्या है मेरा, ऑर्डर ऑफ ए इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 3। 2 और 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स मुझे मिल गए। ओके, तो अब क्या करते हैं, सी जी इज अबेलियन, तो क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए और बी कम्यूट होंगे क्योंकि जी मेरा अबेलियन है। नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी का जीसीडी हम निकाले तो ये 2 है और ये 3 है तो 1 हो गया, राइट। तो हमने एक रिजल्ट देखा था कि इफ ए बी इक्वल टू बी ए एंड बी हैव फाइनाइट ऑर्डर एंड जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 1, देन order of AB is equal to order of A into order of B, and that is what 2 into 3, that is what 6। तो मुझे क्या मिल गया, let us C is equal to AB, तो ये मेरा G में ही होगा because G is a group, A and B are in G, so A into B is in G, so C is in G। तो C का ऑर्डर क्या मिल गया, and order of C is equal to 6, तो I will consider K is equal to subgroup generated by C, again the technique। तो C मेरे पास एक 6 ऑर्डर का एलिमेंट है G में, तो उससे मैं एक सब ग्रुप बना लूँगा K जनरेटेड बाय C। तो ये क्या होगा, इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ K विल बी व्हाट, इट इज़ ऑर्डर ऑफ C एंड ऑर्डर ऑफ C इज़ व्हाट 6। तो देखिए मुझे ये 6 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिल गया इफ़ माई ग्रुप इज़ अबेलियन। तो देखिए हमने वो रिजल्ट देखा था ना, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज ट्रू फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, राइट। तो हमें कैसे देखिए ये मिल रहे हैं, ये 6 ऑर्डर का सब ग्रुप कैसे मिल गया, ये प्राइम ऑर्डर का और प्राइम के पावर के ऑर्डर का सब ग्रुप मिल रहा है, वो हमें कहाँ से मिल रहा है, साइलोस फर्स्ट थ्योरम से मिल रहा है, वो हमने प्रूव नहीं किया। लेकिन यदि इफ वी अज्यूम दिस, देन विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट
we have a subgroup of order 6 and 6 is not prime, 6 is a composite, right? देखिए चलो अब हम let us we construct subgroup of order 12 order का कैसे construct करते हैं, so let us see. मुझे 12 ऑर्डर का सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना है, तो देखो ये 12 कैसे बनेगा, इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3. अब ये 2 स्क्वायर ऑर्डर का मुझे सब ग्रुप मिल रहा है, राइट? 2 स्क्वायर ऑर्डर का कैसे मिलेगा, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर ऑर्डर का साइलोस से 2 स्क्वायर ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा. सो लेट मी राइट जस्ट इन शॉर्ट, 2 स्क्वायर 2 इज प्राइम, 2 इज prime, 2 square divides, so okay, it is 12, order of G, right? And 3 is prime and 3 divides order of G, implies by Syloh's first theorem G has at least one subgroup of order 2 square and 3, say H and K respectively. That is what I have, that is order of H is equal to 2 square, order of K is equal to 3. मुझे ये सब मिलेंगे सब ग्रुप्स. Okay, now G is abelian, तो ये जो HK है वो क्या हो जाएगा, KH. See, HK is what? It is of the form H into K where H belongs to H and K belongs to K. But HK is what? Is K into H where K belongs to K and H belongs to H. तो ये क्या हो गया, KH. So HK is equal to KH. ये G मेरा abelian है, then I can say HK is equal to KH. तो क्या होगा, if HK is equal to KH then HK is a subgroup of G. ये subgroup हो गया, ये हमने देखा था. H is a subgroup of G, K is a subgroup of G, then HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to KH. So we are using that information here. देखिए हम यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहे, हमने जो प्रूव किया है, जो भी हमारे पास छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, वी जस्ट यूज दैट इन्फॉर्मेशन. सो HK is a subgroup of G. Okay. So now also order of H intersection K will be what? ये क्या हो सकता है? See, देखिए order of H is what? 2 square. Order of K is what? It is 3. तो H का ऑर्डर कितना है, 4. तो 4 ऑर्डर के ग्रुप में एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स. तो ये 4 ऑर्डर के ग्रुप में, लेट मी रिमूव दिस थिंग. अब मेरा ये जो ऑर्डर ऑफ H इज 4, तो H के पास कितने ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं, एक तो आइडेंटिटी रहेगा तो 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का और 4 ऑर्डर का. H के पास जो भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर इन्हीं में से होगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन हो सकता है देन इट मस्ट बी 1, 2 और 4. इसके सिवा उसके एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वी नो दैट ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. तो ये अपना ये H मेरा सब ग्रुप है, तो अपने आप में ग्रुप है, तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर वही हो सकता है जो इसके ऑर्डर को डिवाइड करे, दैट इज 1, 2 और 4 ओनली. सिमिलरली K के पास कितने ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं, 1 और 3, राइट. तो देखो H का ऑर्डर 4 है, K का ऑर्डर 3 है. तो H कैसे दिखेगा, H कुछ ऐसे दिखेगा, एक आइडेंटिटी होगा, K में भी एक तो आइडेंटिटी है, और टोटल कितने 4 एलिमेंट है. सो से X, Y, Z एंड से हियर A and B. देन आई क्लेम दैट ये जो X का ऑर्डर है ना वो क्या है, आइदर 2 और 4. देन X नेवर बी इक्वल टू A and B. Why? Because order of A and B are what?
3 ओनली, ये 3 ही हो सकता है, राइट। तो x इज नॉट इक्वल टू ए बी, सिमिलरली y इज नॉट इक्वल टू ए बी, क्योंकि y का ऑर्डर आइदर 2 और 4, एंड हियर ऑर्डर ऑफ a एंड b इज ओनली 3। तो ये y किसी के इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर तो सेम होना होगा ना। y, सपोज y इज इक्वल टू a, but order of y is 2 and order of a is 3, so that is not possible. और similarly z cannot be equal to a and b. तो मतलब क्या हुआ, ये h और k में कॉमन कौन रहेगा, ओनली e, इनमें से कोई कॉमन नहीं है, राइट। तो ये एक और इंफॉर्मेशन मिली कि सपोज मेरे पास h और k का ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम है, दे आर रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम, then they have no element common other than identity. So H intersection K का एलिमेंट, इंटरसेक्शन में कितने रहेंगे एलिमेंट, only one element. I have only one element, right? Okay, so now देखिए अब क्या करते हैं, सी now what will be the cardinality of HK? Cardinality of HK. Okay, now I will not use cardinality because now I know that HK is a subgroup of G. So let me use this notation. Order of HK will be what? Order of H into order of K divided by order of H intersection K. H में कितने एलिमेंट है, 2 स्क्वायर, K में 3 और इंटरसेक्शन में 1, सो ये कितना हुआ 12। तो मतलब क्या हुआ, HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G एंड इट्स ऑर्डर इज 12। तो मुझे 12 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल गया। तो देखिए ये 12 ऑर्डर का सब ग्रुप भी मिल रहा है। इफ G इज अबेलियन, इफ G इज नॉट अबेलियन देन आई कांट गिव द गारंटी, बिकॉज if G is not abelian then I can't have HK equal to KH, as a result it may not be subgroup, as a result I do not have this thing. So that condition G is abelian is a very strong condition, tight condition, right? Okay, so in this way we get subgroup of order 12 also. So by the same argument you can construct a subgroup of this order also, right? You can construct the subgroup of this order. So let us try to construct a subgroup of order 36. ये 36 ऑर्डर का कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये देखिए 36 कैसे बनेगा। 36 इज व्हाट, 6 स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 इंटू 9. Now 2 is prime, 2 square divides order of G, 3 is prime and 3 square divides order of G. So by this Syllo's first theorem, G has at least one subgroup of order 2 square and 3 square, say H and K respectively. Then order of H is 2 square, order of K is 3 square. G is abelian, so HK equal to KH. HK is a subgroup of G and order of H intersection K is 1. क्योंकि order of H and order of K are relatively prime, co-prime. तो यहाँ पे कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, 1, 2 और 4. यहाँ पे 1, 3 और 9. तो कॉमन ऑर्डर के एलिमेंट ओनली 1, दैट इज व्हाट आइडेंटिटी. बाकी के जो ऑर्डर है, बाकी के जो एलिमेंट है वो ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पे जो 1 के सिवा जो ऑर्डर के एलिमेंट्स है वो ऑर्डर के एलिमेंट यहाँ पर नहीं है. सो H इंटरसेक्शन के कंटेंट्स ओनली 1 एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी. एंड नाउ यू यूज दिस काउंटिंग फॉर्मूला, देन यू हैव 3 स्क्वायर एंड एज अ रिजल्ट इट इज व्हाट 36. तो मुझे HK का ऑर्डर 36 मिला, वो सब ग्रुप है G का, सो G हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36. तो ये भी मिल गया. सिमिलरली 24, सो 24 कैसे बनता है, 2 क्यूब इंटू 3. सो 2 क्यूब ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का मुझे यहाँ से मिल जाएगा. फिर वो अबेलियन है तो HK इक्वल टू KH, एंड बाय द सेम आर्ग्यूमेंट आई हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24. सिमिलरली 18 कैसे बनता है, इट इज़ 2 इंटू 9, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 48 कैसे बनेगा. सो अल्टीमेटली एनी कंपोजिट नंबर, ये जो 48 है वो कैसे बनेगा, ये 48 how we 48, so 48 it is a 3 into 48, so 24 into 2, 24 is what, 2 into 24, 24 is 2 cube into 3, so 16 into 3 it is 48.
तो 2⁴ और 3 ऑर्डर का यहाँ से मिल जाएगा सब ग्रुप अबेलियन एच के इक्वल टू के एच को प्राइम, सो यू विल गेट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 48, राइट। सिमिलरली 72 कैसे बनेगा, सो इट इज 3 इंटू 72/3, yes, so it is 3 into 24, 3 into 24, okay, so it is 72. Now 24 is what, 2 cube into 3, so it is 2 cube into 3 square. So I have a subgroup of order 2 cube and 3 square by this Solo's theorem, H and K say, and Hk equal to Kh, and they contains only one common element and so on. So you have a subgroup of order 72 also. Okay, so here we have discussed existence of a subgroup of every divisor when G is abelian group. Abelian nahi hai, then we can't give the guarantee, and we have that example A4. Order of A4 is 12 and 6 divides 12, but F4 does not have any subgroup of order 6. Okay, let me discuss this thing for, मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप है, सपोज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू से 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 square, whatever. I'm not interested in the exact number what is this, but my order of group is this one. तो हमने and let me assume that G is abelian. Let me say G is abelian. तो मुझे G को हर एक डिवाइजर के ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा. So how can I construct a subgroup of order 2 square into 3 square into 5? Order of H is this. ये सब ग्रुप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ मैं? So here it is a product of product contains powers of 3 distinct prime. और यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था, जो ऑर्डर मिल रहे थे 144 में, वो बाई चांस that is what it is a product of power of 2 distinct prime only, because 144 is 12 square and it contains only 2 and 3, 2 distinct prime. But it may happen group has more than 2 prime divisors. So in that case, how can we construct? So let us illustrate only this one. तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले I will construct a subgroup. Say let me say it is L of order 2 square into 3 square. ये तो मिल जाएगा by the same technique. 2 square order का और 3 square order का Solo's theorem से मिलेगा. फिर now my G is abelian, so that 2 subgroups will commute, and I have a product of that 2 subgroup is of order 2 square into 3 square. Now let me consider T. Order of T is 5, or 5 is a prime divisor and it divides, it is a prime divisor of order of G. So by the Solo's theorem or Cauchy's theorem, you can have subgroup of order 5. So L is a subgroup of order this and T is a subgroup of order 5. Now order of L and order of T is what? It is 2 square, 3 square and 5, and it is relatively prime. So you can see here, there is nothing common between this number and this number except 1. So you have LT. LT will be equal to TL because G is abelian. So the order of LT will be what? And L intersection T contains only one element by the same argument. And order of LT will be what? It is 2 square into 3 square into 5. And you have subgroup of order this one. So you have to apply the same argument once again. So in this way, so see, the converse of Lagrange's theorem is true for finite abelian group is now proved. In fact,
हमने ये जो एग्जांपल डिस्कस किए और इसमें जो हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, राइट, सो दैट टेक्निक इज नथिंग बट द प्रूफ, राइट. यू जस्ट राइट फॉर द जनरल केस, देन इट विल बी द एग्जैक्टली द प्रूफ. तो ये जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम क्या प्रूफ यूज़ कर रहे हैं, Sylors-Furst theorem. We are using Sylors-Furst theorem. I will not say Cauchy's theorem because Cauchy's theorem is a particular case of Sylors theorem. तो ये जो प्रूव किया हमने कि कन्वर्स ऑफ लाग्रांज थ्योरम इज ट्रू फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, तो इसके लिए हमने ये चीज़ अज्यूम की विदाउट प्रूफ, राइट. तो यदि हम ये प्रूव कर देते हैं तो वो भी प्रूव हो गया, लेकिन ये प्रूव करने के लिए मुझे बहुत कुछ चाहिए, वो विल डिस्कस इट लेटर ऑन. So this is what something about existence of subgroup with respect to divisibility of order of the group. So I think we stop this lecture here, and in the next lecture we will revisit some cyclic group. We will revisit cyclic group and we apply this information for the cyclic group, and we will get some more information about cyclic group. So we stop this lecture here. Thank you.